everyone, welcome to our show Brood Talks, an initiative of School Yatra and College Yatra. This is your host Sumit Verma, and today we have with us Mr. Anshul Bansal, an enterprising young entrepreneur and a key member of the board of directors at SR Educare and the Sriram Wonder Years, backed by a global academic journey including management studies in the UK and masters in marketing and finance from the USA. Anshul plays a pivotal role in brand empowerment, strategic growth, and financial leadership. His international exposure and sharp business acumen, innovation, and success is across the organization. Today, we are very happy to have Mr. Anshul Bansal on our show. Welcome, Anshul, to our show, Brood Talks. Thank you so much, Samitji. Thank you so much for inviting me. I am seeing this podcast or this journey from very long time, and I'm very excited to be a part of this. Thank you so much for inviting, and I hope what is my vision, I can transfer that vision to all the people, all the dignitaries, all the preschool owners and educationists, and I hope you also like it. It's And going to be a very good show, sir. yeah, And obviously, with a person like a young gun entrepreneur like you, who is managing such a big umbrella, and doing a lot of wonders across Delhi, NCR, and soon traveling to Pan India, it's going to be a great show today, sir. yeah, it is. It is. It will be definitely because you rightly said that now we are trying to expand our wings in Pan India. So I hope that I have made that vision in Delhi NCR. Now it's our time to grow and expand. Yeah. चलो मतलब देखो जहाँ तक स्कूल की एक्सपेंशन की बात है एंड द एक्सपेंशन ऑफ आई शुड से एसआर एजुकेयर एंड श्रीराम वंडर ईयर्स दैट्स अ वेरी बिग अम्ब्रेला बट बिफोर आई कम डाउन टू ऑल दीज थिंग्स व्हाट आई नो मोर अबाउट यू अंशुल इज लाइक कि आप एजुकेशन इंडस्ट्री में तो आए बट अगर थोड़ा सा स्क्रैच बैक लेके जाएं आपके साथ यू आर वेरी इंट्रोवर्ट आप थोड़ा शाय काइंड ऑफ पर्सन थे और आज तो कैमरा भी है इतने सारे एक्सपोजर्स भी हैं एवरी डे यू टेक द प्लेटफॉर्म यू गिव सच अ गुड स्पीच अबव दैट बीइंग इंट्रोवर्ट एक पार्ट आपका बड़ा अलग था यू आर अ स्टेट प्लेयर ऑफ बास्केटबॉल यू इवन रिप्रेजेंटेड यू इवन प्लेड नेशनल्स आल्सो Yes. तो इतनी मिक्स्ड ब्यूटीफुल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो आपने फ्रॉम इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट स्कूल टू कॉलेज करी तो यू नो आई वुड लव टू नो मोर अबाउट इट कि वो इतना ड्रास्टिक चेंज धीरे धीरे आप में जो आया व्हाट एग्जैक्टली इट वाज हाउ इट वाज क्या था क्योंकि अंशुल बंसल स्कूल के टाइम पे लोगों से कम बात करते हैं और आज सच अ बिग फिगर so what was that confidence Yes. which gave you to be what you are today and that's really commendable. Thank you so much. And you rightly said that I was not very good person, as in terms of talking to other people. And yes, I played basketball. I tried to talk, but somehow I was not very open to everyone. But when I did my college, I went to US, UK. Then I saw the in outer world. I had exposure, a lot of exposure. And then I thought, why not to to try to inherit that exposure in my body. So after that, it gave me a boost to me that yes, the not being introvert can help. Obviously, you have to grow, you have to be exposure. So that's the basic idea which I was having. And after completing my college and post graduation, I did I had a opportunity to do a job for US based research company. Then there I learned a lot of things to know about the people, to know about management, to know about work ethics, to know about work environment. So that was the time when I realized that being an open person is a very good quality. So that was the kick for me. And after that, I joined the education industry. Now you know that how I'm doing things. नहीं नहीं भाई मेरे को तो बहुत कुछ पता है आई नो यू हैड लॉट ऑफ एक्सपोजर्स डाउन द लाइन जब आपने काम करना शुरू किया था एडिंग टू योर गुड प्रोफाइल ऑफ एजुकेशन आपने डेयरी प्रोडक्ट से किया था हाँ जी. हैरान हो गया आप मैंने थोड़ी रिसर्च ज्यादा करी आपके बारे में दैट वाज द फर्स्ट स्टार्ट First, yes. ठीक है ना एक डेयरी प्रोडक्ट्स में आप आए एंड यू डिड मार्वलसली एंड समथिंग लाइक post that Yeah, yes yeah. 2017 if I am not wrong you got into the education sector and you were had a blessed mentor and a father figure Mr. Pramod Kumar Yes, Mittal ji yes, right yes. matlab 100%. that was from somewhere you were handholded with a father figure
and things transformed. So I would just love to know कि how it all started, क्योंकि 2017 के अंदर, right from coming down from this industry, फिर you had some job orientation also. Yeah. 6 से 8 महीने you worked with a US company also. You took exposure from Yeah, that, yes, yes. and then you got into the education. And as a father figure, Pramod Mittal ji was like a father to you still and a mentor to you. So we would love to know ki what exactly and how it's all started. You, I don't know you from where you got about the dairy. Yes, you rightly said that I started a dairy in Palwal, so I did it for 1 year. Then अच्छा. after that, उसके बाद फिर मैंने I my dad I did a very good job in there, as for dad and as for family. So I gave the opportunity to other partners, and then I got the opportunity from Mr. Pramod ji. He is my Mausaji. So I thank him a lot that whatever I am today, so whatever I have learned in education industry is because of him only, because he was the guiding torch to me. And of course, my dad was the backbone, and he was supporting me from home and saying yes, you should go out and explore the explore have the exposure of education industry. So when I started 2017, in 2017 I Mr. Pramodji and my dad met, and they come up with a very good solution or very good business opportunity to why not to take the brand master license and to sell it and to make India a better place for education industry. Very Because nice. in India we have a lot of brains. I think almost all the top companies have the CEOs or the founders from India only. Correct. So वैसे आज मेरे ख्याल से the best scientist, the best doctor are all Indian brains. 100%, 100%. So we are not lacking in terms of education. It's just that no one is there to guide it. Very, very rightly said. So he told me that instead of obviously as a banya, it is in my blood that to do a business. But he told me that business is also you have to do it. But somehow आपको you have to give it back to the society also. Very, very rightly. Very good. So that was the vision which he gave to me. So when I joined in 2017, I was very very young, and I was not very good in the education in terms of पढ़ाई जिसे कहते हैं स्कूल में और कॉलेजेस में. But I told my dad and Pramod ji also कि see, I am not a very good person to teach or to tell. He said कि आपको पढ़ाना थोड़ी ना, आपको विजन पास करना है. मैं कहा for that also you should have something ना. तो but after getting a lot of things from him, from educators, from principals, from different people, from like you, so I got to know about the education industry. So when I started, then I thought not to jump into the seat and sit and make the orders. I thought to open a school, preschool of my own only. तो आपने गाजियाबाद से स्टार्ट किया था. सर आपको ये भी पता है. देखो हमने थोड़ी रिसर्च ज्यादा करते हैं. मतलब I know कि that was your first preschool, Preschool, yes. and with the name Shri Ram Global Preschool, Yeah. and from there the first blend of learning, understanding, grooming, each and everything started from there. Yeah. So you rightly said मैंने गाजियाबाद में खोला था, and it was in 2018, 17 or 18, 17, 18. Okay. It was the session starting time. So just because not to have the name in my card or in my back कि Anshul Bansal has the school, just to learn that before selling franchisee or selling vision to other educators or You wanted to visionaries, master it or master understand it. Yes. Let's say if I am opening on rent or buying the place and running the school, what all problems can be there? So yes, there is a lot. Obviously, running a preschool, it's a very tedious job. You have to be on your toes every time because of the safety and security. The first thing is that parent, they are sending their child first time outside their home, and Very they are true. trusting you. So for gaining that trust, I should I should work on the field instead of sitting in the office and just giving the orders to the staff. क्या बात है. So that's why that was the first when I joined when I started preschool. I learned a lot. I learned the practical problems, HR problem, parent problem, what they are expecting from preschool. Then everyone knows that COVID came. So after that, then we we changed our mythology of teaching. We changed our mythology of preschool industry, and obviously after COVID,
many people have realized that preschool is important, early childhood education is important for our younger one. So that was the time, and that was the thing that we did it. Hey, but I think you are doing something out of the box is my good word, because at such a young age, managing big verticals like Shriram Wonder Years, Wonderland, Centennial, ये सब आपकी एक्सटेंडेड विंग्स अंडर द सेम अम्ब्रेला है. बिल्कुल. और जब इतना पूरी दिल्ली एनसीआर में इससे बड़ा नाम नहीं है, मतलब दीज आर गुड बिग नेम्स, एंड यू हैव अ गुड फैमिली एक्सटेंडेंस टू जीडी गोइंका आल्सो, बचपन आल्सो, एंड मच मोर लाइक अबाउट इट. सो वी वुड लव टू नो कि इतनी सारी चीजें जो आप मैनेज करते हो, योर थॉट इज वेरी डिफरेंट, एंड इवन on good research I've come to know that something big is coming up in Noida, Gaur City. कुछ ऐसा आप ला रहे हो which is going to change, or which is going to give a revolution in education. Apart from being only a preschool, it has lot of things added to it. तो I would love that you give some light on it कि जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है वो सिर्फ एजुकेशन नहीं है, that's a blend of something else. सर आप तो सारे मेरे कार्ड्स ओपन कर रहे हो, बट थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग एंड आस्किंग दैट. बट frankly speaking, in India, the basic problem is the education not towards the child, towards the parent. आज की डेट में भी, बिफोर कोविड आई कैन से दैट आज एवरीवन इज इन दैट थॉट कि स्कूल, प्री स्कूल सिर्फ खेलने के लिए, प्ले बेस्ड लर्निंग है. बट नाउ everyone has realized after COVID, when they spend whole year with their child, they learn कि यार why it is important, why preschool is important. Correct. So my vision was not to have the name. Obviously vision is there, but somehow I want, my vision is that to provide everyone a better opportunity and better education. ऐसा ना हो कि चाहे वो कोई भी parent हो, कोई भी financial background से आता हो, whether they can afford it or not. My job is to get them the right preschool, so that the child who is above who is below majority level, poverty level, above poverty level, or middle class, upper middle class, I can cater everyone. So that is my vision, and that's why I I have Wonderland, Centennial School, or the Shriram Wonder Years. So now, since I have I hope that I have made a good name by the Shriram Group, and Very true, sir. It is there. It is now it's my time to expand wings and expand in North India and East and West India, because education is a very vast thing, and only the education can change the world. If you see outside world like US, Finland, Singapore, why they are so growing, and they are very small, मतलब दिल्ली से भी छोटे हैं वो. बिल्कुल Why? सही बात है, बिल्कुल सही बात Just because वो education उस level पे पहुंचा हुआ है कि हर everyone is educated and they know what to do, what not to do. तो एक vision है मेरा भी, और my team, my dad, my mentor, कि वो vision हम, चाहे वो बच्चा घर पे बैठा हो, वो कहीं बहुत दूर tier 2, tier 3 सिटी में बैठा हो, हमारी ऑनलाइन एजुकेशन, हमारी स्कूलिंग वो वहां तक उसके पास पहुंच पाए. That is the vision. That's why we are expanding our wings in pan India. And the thing which you said, that Gaur City, sir, एक एक चीज है हमारे देश में, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे ना फोकस थोड़ा कम है, मतलब था, अब बढ़ रहा है. तो अब उसके चक्कर में फोकस कम था, तो देवर को करिकुलर एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स, डांस, वो सब बड़े बच्चों के लिए थी, लाइक फ्रॉम एज ग्रुप फ्रॉम 6, 7, 8 years till your age, my age. वेरी ट्रू है, ये बात सच है, बिल्कुल ठीक बात. तो बट फॉर टॉडलर्स देवर नथिंग, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और आज भी बहुत कम है. एंड आफ्टर कोविड नाउ छोटे छोटे बच्चे, दे डोंट नो हाउ टू बी अ सोशलाइजर, दे डोंट नो इमोशनल स्किल्स, दे डोंट नो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है उनको. अब वो घर के बाहर ही नहीं गए, अब कैसे जाएंगे. आई हैव अ डॉटर, सो I also tell her कि not to go to sun, it's too harsh, और pollution हो रहा भी. बच्चा सीखेगा कैसे? बच्चे को तो, आज मैं इंट्रोवर्ट था, बट मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह जैसे लोग भी हो, उनको पहले से इतना एक्सपोजर हो कि एनीवन कैन कम एंड टॉक टू दैट पर्सन. तो वो एक विजन, मतलब वो जो एक गैप था उसको आप ब्रिज कर रहे हो, करना चाह रहा हूं मैं, और करने की कोशिश कर रहा हूँ. आपके थ्रू, मेंटर्स के थ्रू, गुड एजुकेटर्स, प्रिंसिपल जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इतने रिनाउंड प्रिंसिपल जुड़े हुए हैं,
एजुकेटर्स जुड़े हैं, प्रोमोटर्स जुड़े हैं, उनके थ्रू एक मैं ये ब्रिज गैप करना चाह रहा हूँ कि फ्रॉम 1 year to 6 years that नोएडा में जो आप बात कर रहे हो गौरसिटी में, which I am coming up with a educational hub, you can say that, for a toddler, समथिंग यूनिक, something unique, राइट फ्रॉम जिम टू एवरीथिंग। sir, नहीं नहीं, आप बताओ आप बताओ आप बताओ आप बताओ। so I am हमारा एक मोटिव आर विजन इज दैट कोई भी बच्चा आए, वो चाहे 1 year का हो चाहे 5 year का हो, he comes from in the morning till the evening, he stays with us, वेरी नाइस। not to just कि आज की डेट में जो पहले था कि सिर्फ बच्चा खेलने तो जा रहा है, खेलने भी जा रहा है, सीखने भी जा रहा है, पढ़ने भी जा रहा है, वो सोशलाइजिंग भी करने जा रहा है, वो अपना हेल्थ, मेंटल, फिजिकल सब डेवलपमेंट करने जा रहा है। सो दैट इज आवर गोल। सो we are coming up with a baby salon and spa, which is a unique concept in Delhi NCR right now. So when I travel a lot across the world, and I whenever I see a good thing in outside India, I try to implement as per our culture and heritage, and try to give it to our societies, or to our kids or parents. What a beautiful thought, So sir. that is why I am saying that I am making a educational hub where only centric to toddlers to 1 to 6 years. Gym जैसे आपने बोला, so I am coming with a gymnastic arena where people will, everyone wants कि इंडिया में ओलंपिक्स जीते, ओलंपिक्स में गोल्ड जीते, तो छोटे बच्चों से स्टार्ट करें हम, पर बिल्कुल। वो स्टार्ट ही अगर हमारा नहीं होगा टॉडलर से, तो कैसे सीखेंगे? आज इफ यू अगर आपने कभी देखा हो Formula 1 रेसेस, या फिर कोई भी आप स्पोर्ट्स उठा लो, 2-3 साल के बच्चे शुरू हो जाते हैं। मतलब आई वाज शॉक्ड व्हेन आई ट्रैवल टू अनदर, मतलब आई वाज सीइंग द F1 रेस। मैंने किसी से बात करते हुए आई वाज हियरिंग दैट ही व्हेन ही वाज 3 ही स्टार्टेड गो कार्टिंग, नाउ ही इज अ वर्ल्ड चैंपियन और समथिंग लाइक दैट। सो मतलब वो पैशन, मतलब पैशन और अपार्ट एक फ्रॉम, विजन होना चाहिए पेरेंट का भी और एक एजुकेटर का, कि यार बच्चा फॉर्मल स्कूल में जाके नहीं सीखेगा, उसको पहले से ही सिखाना पड़ेगा, पहले से इनहेरिट करना पड़ेगा। सो दैट इज द प्रोसेस, दैट इज द थॉट प्रोसेस विच आई हैव, एंड विच आई हैव पास्ड ऑन टू द एजुकेटर्स, टू द प्रिंसिपल्स, की इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो आए ABCD करे और चला जाए। यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, एंड यू हैव टू नो कि वो बच्चा सिर्फ ABCD नहीं, वो सोशल, मेंटल, फिजिकल, हर चीज में डेवलपमेंट करे। होलिस्टिक डेवलपमेंट इज द काइंड ऑफ वर्ड दैट वी कैन यूज इट राइट नाउ। वेरी सो वेरी दैट इज द प्रोसेस। मतलब मुझे, आई कैन सी विद योर गुड विजन एंड इनटू योर आईज की समथिंग अपार्ट फ्रॉम द गुड एजुकेशन डिलीवरी व्हाट the SR Educare and the Shriram family is giving, something adding more to it, 360 degrees your vision, कि सिर्फ पढ़ाई नहीं भाई, sports and more things should be inculcated at a same place. Yes. और जहां तक मैंने भी इतना ट्रैवल किया है, देयर इज लाइक हाइड्रोथेरेपी इज देयर। Yeah. आज की डेट में बड़ा छोटे बच्चों का बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। Concept, it's a unique concept. It's हाइड्रोथेरेपी बहुत बड़ा वर्ड हो गया, पेरेंट डर जाएंगे इससे हाँ, अगर हो मैं सकता है। हाइड्रोथेरेपी बोलूंगा तो। स्पा स्पा थेरेपी इज नॉट थेरेपी। आज की इंडिया में भी इट्स यू कैन से अ डिजीज, और एक बीमारी बोलते हैं, इसको बीमार है इसलिए थेरेपी चाहिए, करेक्ट। बट it's not like that. Therapy means relaxation, अपने नर्व्स को ओपन करना, अपने ग्रॉस मोटर स्किल्स को ओपन करना, वो थेरेपी होती है। थेरेपी मतलब ये नहीं कि आप बीमार हो गए तो थेरेपी आप सही बात है, तो क्योंकि जब थेरेपी सेंटर बोला जाता है तो दो तरह से होता है, वो रिलैक्सेशन का भी हो सकता है, वो इम्प्रूवमेंट का भी हो सकता है। हाँ, तो आपकी वाली बात ठीक है कि इफ आई नेम दिस वर्ड लाइक हाइड्रोथेरेपी, तो इट कुड बी कॉन्ट्रडिक्शन, लाइक कि समवन कैन अंडरस्टैंड। हाँ, छोटे बच्चों को कैसे हो सकता है। ओके, like now there are hospitals which are coming, which are centric to child development and child women pregnancy and child thing. So when I saw in hospitals, they were like, यार हमारे देश में हाइड्रोथेरेपी नहीं है, there are lot of kids who want hydrotherapy. Basically what is that? That means when the child is in womb, mother's womb, it's in water only. मतलब 0 to 9 months, 0 to 9 months जब होता है वो वाटर के वोम में होता है, तो it's अंडर वोम, इट्स अ वाटर। Correct. वाटर के अंदर एक शेल होता है, shell उसमें के रहता है। अंदर हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो मीन्स वो बच्चा पहले से पानी में, ठीक है। बच्चा जब निकल रहा है तो वो उसको इनहेरिट है, वो पानी के अंदर था। तो आज अगर हम उस बच्चे को 0 to 6 months 8 months के अंदर उसको अगर हम वाटर का एक्सपोजर दे देंगे,
तो मींस I'm आफ्टर द बॉर्न टाइम on time. वो 9 मंथ्स के बाद तो जीरो से स्टार्ट होगा, Zero, करेक्ट? yes, तो yes. मतलब आपको कहने का मतलब है जो फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ First six डेवलपमेंट है development है आफ्टर द बेबी इज बॉर्न, born. यू नो, अगर आप उसको द पानी में टेंडरिंग एज, बिल्कुल जब जहां से टेंडरिंग स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट होता है जहाँ पे मतलब जैसे होता है ना कि मदर मदर इन लॉ उनकी वो निकलने भी नहीं देती कि नहीं यार अभी बहुत छोटा है, उस गोदी टाइम तक रखते हैं उस गोदी टाइम तक रखते हो, तो वो टाइम है तो बच्चों का स्विमिंग सीखने का मतलब वो पहले ही वाटर के अंदर है वोम में, अगर उसको हम एक्सपोजर पहले ही दे देंगे दे आर मच टैलेंटेड इन टर्म्स ऑफ स्विमिंग। अगर मैं आज नेशनल स्विमर की बात करूँ ना, उससे अच्छा बच्चा 1-2 महीने का स्विमिंग स्विमिंग कर कर सकता है। लेगा, बिकॉज उसको इनहेरिट हो रखा है। और वो हाइड्रोफोबिया क्यों होता है, 1 साल बाद आप सीधा हम क्या करते हैं, बड़ा सा स्विमिंग पूल होगा, बच्चे को बोलेंगे जा स्विमिंग कर, नहीं जाएगा वो। यार इतने बड़े स्विमिंग पूल में आप कैसे कर सकते हो। वो दैट्स व्हाई दी स्मॉल स्मॉल टब्स जो जकूजीज बोलते हैं वो इसलिए बनाए गए हैं कि वो छोटे से एरिया में बच्चों को कंफर्टेबल कंफर्टेबल हो कर। पाए। उसके बाद और नॉट इज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड स्विमिंग। सेकेंड इज ग्रॉस डेवलपमेंट जो होती है, नर्व्स खुलती हैं हमारी, ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन जो जिसे कहते हैं ना, जिम करने के बाद ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन इनहेरिट होती है, बिल्कुल ठीक है। वो चीज हमारी कोशिश है कि हम वो एजुकेट कर पाए कि व्हाई इट इज नेसेसरी, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। सो एक वो विजन हमारा अभी तक सोचा है, बाकी नहीं नहीं, आई वी थिंक आर फिंगर्स क्रॉस्ड विद सच अ ब्यूटीफुल काइंड ऑफ अ विजन अपार्ट फ्रॉम द फोर वॉल्स ऑफ अ स्कूल, कि सिर्फ उसको आप ब्यूटीफुल एसी से या बड़े होने से नहीं बना सकते, वे बियॉन्ड रीच जो आपकी चल रही है। आई थिंक यू नो व्हाट यू आर वर्किंग ऑन, यू आर गोइंग टू ब्रिंग, यू हैव ऑलरेडी इनकलकेटेड एंड यू आर इम्प्रूविंग ऑन इट, यस सो यू आर ट्राइंग टू मिक्स द इंटरनेशनल लाइंस, आई शुड से, इन योर इंफ्रा। और जो आपका सेक्टर 35 वाला नोएडा वाला है, आई थिंक यू हैव मेड इट टू दैट स्टैंडर्ड ऑल्सो। यू नो look, very I am very thankful that you think that it is No, at that level, but I had seen it, you know, once I was there. yeah, yeah. जब आपने नया नया वो खोला था तो I was very honored to be a part of that particular place. And after seeing from my own eyes, there is a small saying called seeing is believing. तो seeing is believing में उस टाइम तो वो डेवलप था, हो रहा था, थोड़ा बहुत ही रह गया था। Yes. बट जो मैं समझ पा रहा था आपकी, यू नो, उसके अंदर साइकिलिंग ट्रैक्स, उसके अंदर जो आपने चीजें नहीं बनाई थी, दे वर ऑल ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। सर सुमित जी वो सिर्फ क्या था, आफ्टर कोविड ना, ये इंडिया हैज रियलाइज्ड व्हाई अर्ली एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। सो अब इंडिया इज अ बिग मार्केट, everyone around the world wants to work in India, obviously, because of the population, because of the government now which we have, because of the people, because of the educators which we have. तो इंटरनेशनल ब्रांड बहुत आ रहे थे हमारे देश में, लाइक डिबर, like Oyo brand, आयोग्रा। like Japanese also. Japanese brand is there. I don't remember the name, but it's in Gurgaon. So they were taking our kids. They were showing कि internationally ये होता है, internationally हम ऐसा करते हैं। मैंने यार इंटरनेशनली क्या है, नेशनल आज की डेट में वी शुड टीच आवर किड्स अबाउट आवर नेशन, अबाउट आवर हेरिटेज, अबाउट आवर कल्चर। वो वेरी ट्रू। वेस्टर्न कल्चर को सीख के और घर में हम बोलते हैं कि नमस्ते करो, अब हम भेज रहे हैं स्कूल गुड मॉर्निंग सीखने के लिए, वो तो शुरू से ही हमें सिखाना पड़ेगा ना। सो वो हमारे ब्रांड में है। द श्रीराम इज वेरी इनटू द कल्चरल वैल्यूज, द हेरिटेज वैल्यूज ऑफ इंडिया, द if a person is born in India, they should know about the roots of India, like कि क्या historic places हैं, क्या सारी चीजें। But we the Shriram is more focused into curriculum academics. My vision was when I was building Sector 35 school, कि let's give it a back competition to the international brands। क्या बात यार है। श्रीराम सिर्फ करिकुलम के लिए नहीं जाना जाता, वो इंफ्रा के लिए भी जाना जाता है, और हम अपनी पे आए जो हर बार इंडिया बोलता है और करके भी दिखाता है कि तो हम अपने इंटरनेशनल ब्रांड्स को भी हम नीचे कर सकते हैं। Correct. तो वो कोशिश करी है एक कि दैट स्कूल बिकम अ ब्रांड वेयर a branch, not a brand, where we can meet our international equipments with the inherit of our cultural values. So सिर्फ ये 35 में नहीं है, जितने भी हमारी दर्शन की ब्रांचेस है, we try to do that. And obviously नई ब्रांच है तो we try to do something new. अब गौर सिटी आ रहा है तो और कुछ नया करने की सोच रहे हैं, अभी फरीदाबाद आया तो हमने और कुछ नया सोचने की करा है. We are coming up in Gurgaon also. So every time we are coming up with a new school, we our thought process की कुछ ना कुछ नया लेके आए, कुछ ना कुछ ऐसा लेके आए जो बियॉन्ड स्कूल आवर्स भी हो एंड वो पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा। तो एक ये थॉट प्रोसेस थी। आई थिंक दैट्स रियली कमेंडेबल। आपका विजन सबसे पहला तो यू नो
being a director to such a group, the vision makes a difference, and that vision what you are carrying is somewhat like to mix everything, bring it under the same umbrella and give to the best what people can think of. Yes, when you want more things you have to spend little extra, Obviously. but something ये आपने मुझे लग रहा है you want to break that line सोचने के लिए कि यार अगर मैं सिंगापुर रहता होता, मैं लंदन जाता होता तो ऐसा मिलता नहीं भाई, सब मिलेगा, सब मिलेगा। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तब आप कर पाएंगे, क्योंकि दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और जहां तक मुझे लग रहा है ब्रेकिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ एज है, यू हैव गॉन टू द बेस्ट टू ट्राई इट विद योर ओन चाइल्ड। आई थिंक Dhanvi is just 2.5 years old. Yes, yes. She is your sweet daughter, Yeah. with such a beautiful name, first of all, complimenting her name. Thank you so much. And secondly, she was just 13 or 14 months old Yes. जब आपके प्री स्कूल में यू गॉट हर इंडक्टेड, ब्रेकिंग डाउन ऑल बैरियर्स True. कि लोग बोले नहीं 1.5 साल 2 True. साल 18 महीने 16 महीने। When I give it a thought that I discuss with my wife कि यार अपना खुद का भी स्कूल है, स्कूलिंग लाइन में we are in from education industry, we should we should get the admission done. So you rightly said कि जो अब 90% और 80% जॉइंट फैमिली है, दादा दादी घर में रहते हैं, चाचा चाची घर में रहते हैं, पागल है बच्चे को डाल रहे थे। सही बात। अभी से छोटे से बच्चा है, कैसे डालेगा, कैसे करेगा, ना चल पा रहा है ना कर पा रहा है। मैं कहा सिर्फ मुझे चलाना नहीं है, मुझे पढ़ाना नहीं, मैं जस्ट बिकॉज सोशलाइजेशन बहुत जरूरी है। आज एक्सपोजर नहीं होगा बच्चे को, वो कैसे बात करेगा, कैसे करेगा। अब वो चार यू सेड राइट अवे कि वो एसी, घर में भी एसी है, घर में भी चार दीवारी है, स्कूल के अंदर भी है, बट वो पेरेंट ये नहीं समझता, ग्रैंड पेरेंट्स ये नहीं समझते कि दूसरे बच्चों के साथ जब इंटरेक्ट नहीं करे कैसे बिल्कुल सीखेगा? बिल्कुल, उसको बैठना है, उसको अपनी एंजाइटी एक्सप्रेस करनी है, उसको अपनी हैप्पीनेस एक्सप्रेस करनी है। वो दूसरे बच्चे को भी हाथ लगाएगा, खेलेगा, हो सकता है तो सामने वाला थप्पड़ मार दे, काट दे। हाँ, आई नो प्रोटोकॉल्स आते हैं, इट कुड बी फ्रॉम योर साइड आल्सो, आपका बच्चा भी कर सकता है। एवरी तुम सर एक बात बताओ, 25 बच्चे एक क्लास में होंगे तो मतलब हम यहाँ 10 लोग बैठ जाते हैं, हम दोस्त भी बैठेंगे तो लाउड हो जाते हैं, लाउड बिल्कुल हो जाता है। अगर 25 kids are sitting or 24 kids are sitting में भी हो जाती है। तो when 10 to 15 kids are studying in a classroom, so और 2 साल के बच्चे एक ही ग्रुप से, वो एक दूसरे को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, छूना भी चाहते हैं, टच करना भी चाहते हैं। ये यार ये मेरे जैसा दिख रहा है, ये कौन है, इसके बाल लंबे हैं, इसके छोटे बाल हैं, तो अब एक दूसरे को टच करेंगे तो किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को नहीं। सही तो है। वो चीज वो तभी फ्रैंकली इसमें टचवुड माय डॉटर हैज सो मच एक्सपोजर। मतलब मैं घर जाता हूँ तो वो चुप ही नहीं होती है, डैड क्या करा आपने, कि मतलब मैं 2.5 साल की है, मेरे से ज्यादा नॉलेज हो गई उसको। जस्ट मतलब आई एम नॉट सेइंग कि एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, एवरी चाइल्ड हैज देयर ओन माइंडसेट, बट सेंडिंग द चाइल्ड फ्रॉम टॉडलर एज, इट इज वेरी बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर। मतलब बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट दिखती है। मतलब आई आस्क एवरीवन कि एक बार यू शुड ट्राई आवर स्कूल्स, फ्रैंकली स्पीकिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक नोएडा अच्छा है, हमारे दिल्ली में स्कूल्स हैं, गुड़गांव में भी हैं, पानीपत में भी हैं, वी हैव स्कूल्स इन फरीदाबाद आल्सो, वी हैव स्कूल्स इन गाजियाबाद आल्सो। I request everyone, all the parents, you should come to our schools just to see the environment. And I know for you, obviously money matters a lot, but somehow बच्चे की एजुकेशन है, थोड़ा सा तो हम स्पेंड कर ही सकते हैं। नहीं सर, इट इज इम्पोर्टेंट। coming down to the pocket size, yes, it makes a difference. Everyone has that comfort zone. Yeah. But I think these days everything is very flexible. आज कोई भी पेरेंट है जो अपना बैक ट्रैक देखेगा, जो उसने नहीं किया था वो आज चाहता है कि मेरा बच्चा करे। बिल्कुल ठीक है। एंड राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एज, if I remember my preschool or my time, things were very different. Even when it comes to your child doing now, it is not any golden spoon or silver spoon, I should say. It is the exposure. आप चाहते हो कि मेरा बच्चा करे, नहीं चाहोगे तो क्या होगा, घर ही बैठेगा। और क्या होगा, 2-2.5 साल में आप 4 महीने 5 महीने डालोगे, एंड एज पर द पॉलिसी, अगर इफ इट इज दिल्ली 3 to 4 years, अगर नर्सरी की जा रही है, गुड़गांव, नोएडा एंड अदर प्लेसेस एनईपी पॉलिसी 4 to 5 आ रही है, तो उसको 4-6 महीने अपने दोस्त, मतलब एक जगह का वो मिलता है, एंड देन यू आर टू फॉर्मल स्कूल। बट आई थिंक दैट बिफोर गोइंग टू फॉर्मल स्कूल, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्री स्कूल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड दैट इज नॉट व्हाट ही और शी हैज लर्नड इन एजुकेशन ओनली, कि वो ABC या पोएम कितनी सीख के आया। वो बड़े अच्छे कल्चर हैं, आने चाहिए, बट उसके साथ
इम्पोर्टेंस है कि यू गेट डाउन टू अ प्लेस, यू नो हाउ टू होल्ड योर सेल्फ, काम कैसे रहना है, सिचुएशन को कैसे डील करना है, सब बच्चों के साथ कैसे बैठना है, खाना इकट्ठे कैसे खाना है, एटिकेट्स एटिकेट से धीरे धीरे। मैं ये नहीं कह बिल्कुल रहा सारा कुछ अभी कोई आईआईटी की पढ़ाई नहीं है, ऑब्वियसली बट धीरे धीरे एडिंग वन ऑन अनदर, ब्रिक बिल्डिंग से एक बिल्कुल घर बनता है। बिल्कुल सर, आपने देखा भी होगा, मतलब यू आर इन दिस फील्ड फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, फ्रॉम डेकेड। आपने पेरेंट्स से भी बात की होगी आपने कि यार मेरा बच्चा जाता है रेस्टोरेंट, वो तो उधर मजा देता है, वो बैठता नहीं है, टेबल पे बैठ जाता है। तो दिस इज द थिंग विच वी नॉट आवर प्री स्कूल, एनी प्री स्कूल करेक्ट करेक्ट इज करेक्ट टीचिंग। करेक्ट। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि शिरामी सिखा रहे हैं, सेंटिनल स्कूल सिखा रहे हैं, वंडरलैंड, एनी प्री स्कूल, इफ यू गो टू एनी प्री स्कूल, वेरी नाइस, मतलब वेरी वेरी नाइसली सेड, आई शुड वो अप्रिशिएट दिस, यस। वो वो चीज सिखा रहा है कि व्हाट आर द एटिकेट्स, व्हाट आर द एटिकेट्स टू ईट। मतलब आज आप देखोगे हमारे हम में तो, जब मैं छोटा था बेसिकली मेरी मम्मी तो बोलती थी नहीं खाना ही खाना है आपको, हम तो डर के चक्कर में खा लेते। आज की डेट में कोई बच्चा नहीं डरता, सही है। नहीं खाना तो नहीं खाना। और ऑनलाइन इतनी चीजें हो गई हैं सर, वो दे नो हाउ टू इंस्टॉल यूट्यूब एंड रन यूट्यूब, दे डोंट नो हाउ टू, मतलब दे frankly speaking they know how to order on Swiggy also, मतलब not obviously 2 years but 4-5 years का बच्चा करने लग जाता है। थोड़ा बड़ा बच्चा, और एंड पीपल, आई आई हैव सीन पेरेंट्स फील प्राउड कि अरे मेरा बच्चा है, उसको जो चाहिए वो मंगा लेता मांग है अपने ले, आप स्विगी से। तो बट वो ये नहीं समझ रहे कि वो अपनी फेवरेट चीजें मंगवा रहे हैं। आज आपको हम सब बोलते हैं, आप भी बोलते हैं सब कि ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, वो ग्रीन वेजिटेबल्स खाई नहीं रहा। वो प्री स्कूल में सिखाया जाता है कि ईटिंग विद योर कंपेनियंस, विद योर पीयर्स विल हेल्प यू टू ईट। मतलब वो फोमो हो जाता है, जिसे कहते हैं ना फोमो, आज की डेट में वो फोमो हो जाता है, यार मैं बिल्कुल नहीं खा ठीक, रहा, वो कैसे खा रहा है, बिल्कुल ठीक है। मेरे को भी खाना है, मैं बच्चा सा कितनी खा रहा है। और मेरे ख्याल से सर सारे बच्चे अलग अलग डाइवर्सिटी और कल्चर होता है, ठीक है, कोई ए है, कोई बी है, कोई सी है, कोई मतलब what I mean to say is, a person could be a child could be from Bengali culture, somebody could be a Sindhi culture, somebody is या from Punjabi culture, somebody is from other culture। अब सबके घर की अलग 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 चीजें बन के आती हैं, बिल्कुल सारी बड़ी डिलीशियस होती हैं, बिल्कुल तो एक दूसरे के साथ शेयर भी करें, क्योंकि आजकल मैंने देखा प्री स्कूल्स में अपनी किचन भी होती किचन, है, यस बट देयर आर मेनी प्री स्कूल्स विच इनवाइट की पेरेंट्स को, वो बोलते हैं कि आपके बच्चे को आपने जो खिलाना है आप वो भेजो, बिल्कुल क्योंकि समटाइम्स ईटिंग हैबिट्स आल्सो आर या देयर, या फैमिली टू फैमिली डिफर करती हैं, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे टू बच्चा डिफर करती हैं, समटाइम्स सम चिल्ड्रन आर एलर्जिक आल्सो। या आप भी बहुत ध्यान बिल्कुल रखते बिल्कुल होगे, क्योंकि जब आप फॉर्म भरवाते होगे तो आप उससे पूछते होगे कि इसको ये चीज देनी है नहीं देनी, इट कुड बी बिल्कुल एनी काइंड ऑफ अ बिल्कुल फ्रूट, इट बिल्कुल कुड बी एनी काइंड ऑफ अ व्हीट, किसी से भी बिल्कुल हो सकती बिल्कुल है। बिल्कुल। और अब तो बढ़ गई है ये चीजें, बढ़ वो गई है, चीज बढ़ गई है, हमारे बढ़ मतलब गई। आपके टाइम में तो बिल्कुल नहीं हो गया सर करती उस टाइम थी। तो कहाँ याद रहती है, उस टाइम तो हमने तो सुना ही नहीं था। हाँ अब की लैक्टो हो गया है, बीट से प्रॉब्लम हो गई। बट यस यू राइटली सेड देयर आर स्कूल्स, हमारे स्कूल्स में तो वी हैव आवर ओन किचन वेयर वी प्रिपेयर हेल्दी न्यूट्रिश फूड, इन टर्म्स ऑफ कीपिंग माइंड कि वो हेल्थ, किसी को कोई बीट से प्रॉब्लम नहीं है, आलमंड से नट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वी डोंट encourage की टू यू सेंड इट, बिकॉज यू राइटली सेड देयर आर लॉट ऑफ किड्स विद डिफरेंट कल्चर वैल्यूज। हम्म। अब कौन क्या खा रहा है, किस तरह का खाना खा रहा है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई वी ट्राई टू मेक इन आवर स्कूल इटसेल्फ। एंड बच्चे को वो रियलाइजेशन हो जाती है कि मेरे स्कूल में खाना बन रहा है तो ये मेरा खाना है तो मैं खाऊंगा इसे। तो एक रियलाइजेशन, एक अथॉरिटी बहुत जरूरी है हमारे देश आज की जनरेशन में और बच्चों की उसमें। तो एक वही प्रोसेस हमारे स्कूल्स में चल रहा है। और मैं आई आई रिक्वेस्ट एवरीवन आल्सो कि फूडिंग हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जो बिल्कुल ठीक करनी चाहिए अपने शुरू बच्चों से ही की। आती है, नहीं तो बाद में आई थिंक टेस्ट बड्स चेंज भी हो जाते हैं, लाइक whatever good we are trying to discuss with each other on a podcast, so open to it, क्योंकि जैसा बच्चे को शुरू से आप आदत डाल दोगे, वैसे ही बनेगा। जबरदस्ती तो नहीं खिलाना चाहिए, बिल्कुल दैट इज बिल्कुल ऑल्सो ट्रू, बिल्कुल बट he or she should try राइट, first, यस and I think there are many reasons to try, क्योंकि अगर एक बच्चा खा रहा हो तो दूसरा उसको देख के भी खाता है। बिल्कुल सर, हम ही हो जाते हैं हाँ मोमो। तो आए हुए तो आज आज और मैं बैठे हैं आप, मैं मेरे को भूख नहीं है, भूख नहीं है, भूख नहीं है। आपने जैसे आपने रोटी या फिर वट एवर यू हाँ तो एक एक बाइट ट्राई करने, हाँ बिल्कुल तो ठीक कह रहे वो हो। फोमो ही तो है सर मेरे को वो। और फोमो जानबूझ के नहीं हो रहा है, वो अंदर से ही हो रहा है कि यार लेट्स ट्राई इट। लेट्स तो ट्राई। वो बच्चों में भी है, ऐसा नहीं है कि बच्चों में, जो आज हम बड़ों में भी है वो बच्चों में भी होता है, बट वो एक्सपोज नहीं हो पाता है। वो हमें एज अ प्री स्कूलर एंड एज ए एजुकेटर वी वांट टू डू दैट एंड वी आर डूइंग इट। एंड वो बहुत ज़रूरी है एक्सपोजर होना। और पेरेंट्स को ये ज़रूर समझना चाहिए आज की डेट में कि प्री स्कूल इज़ नॉट फॉर प्लेइंग। सिर्फ प्ले नहीं होता है, यू लर्न होलिस्टिक डेवलपमेंट, यू लर्न सोशल डेवलपमेंट, यू लर्न इमोशनल डेवलपमेंट, यू लर्न
how to talk to other peers, other teachers. रिकग्निशन बहुत इजी हो जाती है, विजुअलाइजेशन बहुत इजी हो जाती है. अब आज की डेट में स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है. आपने वेरी वेरी नाइसली सेड. मेरे क्वेश्चन को आपने खुद ही ले लिया. मतलब आई रियली अप्रिशिएट. प्लीज गो अहेड. बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप. screen time is a very big issue, for I'm not blaming parents, because parents के भी अपने एक responsibilities है, घर की, ऑफिस की, बच्चों के लिए. बट somehow हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, वी हैव टू मेक श्योर कि वो स्क्रीन टाइम, मैं ये नहीं कह सकता आज की डेट में स्क्रीन टाइम जीरो हो जाए, नहीं हो सकता सर. करेक्ट. बिकॉज हर चीज फोन पे हो रही है. मतलब आप बात तो कर रहे हो, फोन पे कर रहे हो, तो बच्चा देख रहा है, बच्चा बोलेगा पापा आप यूज कर रहे हो, मैं क्यों नहीं यूज कर सकता, वाई कांट आई. तो वो चीज, हाँ, लिमिट कर दो कि इतना ही आपको टाइम देखना है या दिखाना पड़ रहा है. बट ये नहीं होना चाहिए वॉट एवर यू आर डूइंग. जैसे बच्चा खाना खा रहा है तो बेटा स्क्रीन देख ले, बच्चा तू कपड़े पहन रहा है तो दोज शुड बी अवॉइडेड. अवॉइड. मतलब अवॉइड का मतलब है आपके वाला वर्ड को अगर इफ आई ऐड वैल्यू टू इट, मतलब इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड और मिनिमलाइज. यस. हाँ, क्योंकि बहुत चीजें अगर कई बार आप रोकते हो तो उतनी एंजाइटी बच्चे की उसको करने की पड़ती है. तो देखो, आज हम रोक सकते हैं टिल 3-4 years. आफ्टर 4 और 5, वी कांट स्टॉप इट टू नॉट टू यूज स्क्रीन, बिकॉज पढ़ाई बिना स्क्रीन के नहीं हो सकती है. वी हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट वो विदाउट स्क्रीन. स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं, स्मार्ट क्लासेस हो गई हैं, आईपैड्स आ गए जिसमें पढ़ाई होती है, रोबोटिक्स आर यूज या डन थ्रू screen only. स्क्रीन So we can't avoid it, but we can, minimize minimize it, and the we can use delay of it. the screen time. Yes, Correct, yes. correct. For the toddlers. Obviously मैं ये नहीं कह रहा कि आप, आई एम श्योर आफ्टर दिस पॉडकास्ट कहीं ये कॉल ना आ जाए कि ही सेड, ये कैसे कह सकते हैं कि स्क्रीन नहीं होनी चाहिए. स्क्रीन होनी चाहिए, बट बहुत लिमिटेड, और बहुत, एक प्रॉब्लम हमारे देश में, प्रॉब्लम नहीं कहूंगा मैं, इट्स नॉट द राइट वर्ड. We are going with a very neutral. Now we have realized that nuclear family is, coming up, मतलब where mother, father and child is there. Correct. Both are working. Obviously उनको अपना वर्क भी देखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी है. तो बच्चे को क्या कहते हैं, यार ठीक है बच्चा रो रहा है, स्क्रीन है. तो उसके लिए हम चाहते हैं कि वो मेड इज देयर. हाँ, अब वो टाइम तो चले गए कि जब लैंडलाइन बजता था. बिल्कुल. ठीक है, अगर आज भी लैंडलाइन है, ऑफिस में है और कहीं घरों में है, दैट्स आई शुड से लाइक 3 आउट ऑफ 10. आई विल नॉट से 5 आउट ऑफ 10, 3 आउट ऑफ 10. मतलब हमारे तो आज की डेट में जो नेट कल्चर भी है उसके साथ एक लैंडलाइन का एक फोन आता है, बट बहुत कम यूज होता है. अगर मेड भी काम कर रही है तो अगर उसके एक्सेसिबल होगा लैंडलाइन तो उठाएगी, वरना आप भी उसके मोबाइल पे ही फोन करोगे. बिल्कुल. और अगर उसके मोबाइल पे फोन करके आप पूछोगे बच्चा क्या कर रहा है, 1 मिनट मेरी बात करा दे, तो अगेन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लाइक नो द सेम. Yes, yes. So means what I can understand from your good conversation is yes, the use could be minimized, but yes, आपको जी हम करते ही नहीं है, schools भी नहीं करते, that's very true. मतलब minimize करने का Minimize, word is yes, the yes. very good word, but there are so many protocols where it is necessary also. Yes, yes. वो, और सर, in a 21st era, century era, and digital era, we can't avoid screen, we can't avoid digital things. Obviously we have to inherit in our culture कि वो होगा ही होगा. But शुरू से ही अगर हम उनको वो आदत डाल देंगे तो फिर वही वाली चीज़ है कि बच्चा बहुत, जैसे आज की डेट में बहुत, ये जो टर्म्स, बहुत क्रैंकी हो रहा है, अनसेटल्ड है, यही फैक्टर्स हैं जो स्क्रीन टाइम हम चाहते हैं कि अवॉइड हो, सो दैट कि वो बच्चा क्रैंकी ना हो. अब फ्रैंकली स्पीकिंग, आज जो बच्चा देखता है, विजुअलाइजेशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन थिंग. इफ यू वांट टू टीच एनीवन, विजुअलाइजेशन, एक पिक्चर चला दो, बहुत इजीली याद रहेगी. बट आप कभी रियलाइज, मतलब इफ यू, आई एम श्योर आपने कभी बात भी की होगी, तो पेरेंट हैव टॉक टू यू कि यार ये रात को बोलता भी है, वो जो स्क्रीन देखे वो वही चीज कर रहा था. मेमोरी है ना, वो खाली खाली फ्लॉपी में जो फीड हो जाएगा वो वापस आएगा बार. वो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. अब इससे अच्छा वी हैव लॉट ऑफ मेथड. मैं ये नहीं कह रहा कि प्री स्कूल पे ही डिपेंडेंट हो, बुक्स दे मतलब दीजिए. योर, मतलब behind this entire good conversation is spending time with quality time with child is also very important. क्योंकि मान लिया पेरेंट काम पे जाता है बट गुड ऑन टाइम अगर वापस आता है तो ही और शी और बोथ should engage themselves in some of the other activities to play with children so that वो उससे थक के सोए, बजाय कि वो अपने आप को इतना ग्लू कर ले या कोई चीज देखता रहे या उसको टाइम सेटल करने के लिए हम उसको एडिट कर दें कि उसके दिमाग में वही चीज चलती रहेगी, एंड देन ही विल गेट डिफोकस्ड फ्रॉम पेरेंट टच टू that particular digital world. बिल्कुल सर. I understand, and I think yes,
not only a question, that's a challenge among each and every one of us. It is a और challenge. उसमें हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं, हम No. सबको ही कंट्रोल भी करना है, ध्यान भी रखना है, अवॉइड तो नहीं कर सकते, Avoid हो नहीं रिड्यूस सकता, कर reduce. सकते हैं. And you know, for that, preschools are there. That's why the preschools have come up, and so that कि वो parent को हम guide कर पाएं, how to minimize it, not to avoid it, how to minimize it. वो we have renowned educators in our schools. We have educators, you know, teachers in our schools who can give you better ideas कि how to spend quality time with the child. And frankly speaking, there is a study कि अगर आप एक घंटा सिर्फ एक घंटा 24 आवर्स में अपने बच्चे के साथ स्पेंड करते हैं, इट इज इक्वल टू 23 to 24 आवर्स अ डे बेसिकली. तो वो बहुत जरूरी है आज की डेट में करना, और जो कम है, बट अब यू नो आफ्टर द एक्सपोजर, आफ्टर एजुकेटिंग पेरेंट्स, नाउ इट हैज इंक्रीज्ड. एवरीवन हैज रियलाइज्ड कि यार फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है. पहले पहले होता था कि खेलेगा कूदेगा तो बनेगा बेकार पड़ेगा, यू नो वो वाली एक लाइन होती थी. अब वो चीज ही नहीं रह गई है. अब सिर्फ खेलने कूदना तो बंद ही हो गया बच्चों का. खेल अब आप देखो ना, खेलने कूदेंगे, सहवाग बनेंगे, विराट कोहली बनेंगे, यू नो रोहित शर्मा बनेंगे, और नीरज चोपड़ा बनेंगे. चोपड़ा बनेंगे, करेक्ट. तो वो सबको ओलंपिक्स में, एवरीवन इज हैप्पी कि इंडिया ओलंपिक्स में गोल्ड लेके आता है. बट ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं. सब ये कंपेयर करते हैं, और चाइना कितने गोल्ड आ गए, यूएस कितने गोल्ड आ गए, हम तो बस इतने में, हम पिछली बार 21-22 गोल्ड आए, बस medals आए. यस यस यस. we were every Indian is so happy कि यार हमारे पे इतने सारे गोल्ड्स आ गए, मेडल्स आ गए. बट आप कंपैरिजन देखो चाइना या फिर बाकी कंट्रीज से, एक्सपोजर फ्रॉम द राइट वो एज. क्यों है? जो वो है. आपने यू नो इन द स्टार्टिंग यू सेड कि एज अ एजुकेटर आई वांट टू मेक अ एजुकेशन अ 360 Degree revolution, correct. revolution thing, and for that we are working on a new project also, which is you know coming up in a you know with a sports arena kind of a thing, where education and sports can be blend, you know, so that कि we can give the exposure for the sports also, कि so that कि हमारे सिर्फ फ्यूचर नासा फ्यूचर इसरो के लोग नहीं, फ्यूचर क्रिकेटर्स बने, यू नो जैवलिन थ्रो के लोग बने, राइफल शूटिंग के लोग बने. वी वांट दैट. अब आज की डेट में देयर आर लॉट ऑफ न्यू स्पोर्ट्स व्हिच इज कमिंग अप इन इंडिया, एंड इट इज पिकिंग अप वेरी वेरी यू नो फास्टली. सो वो चीज़ें हमें, वी आर मतलब, it's my thought process ki let's make a sports and education you know a new kind of a curriculum where education is 50 and sports is 50. नहीं, मैंने तो ये देखा भी है कि आज थिंग्स हैव चेंज्ड. जितने ये यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, आफ्टर क्लास 12th, देयर आर so many people. आज शार्क टैंक में अगर आप देखो, there are dropouts from Dropouts, schools, yes. colleges. I am not trying to promote that kind of a thing. मतलब मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, but on the other way, if we try to look at it like, people have a different kind of a mindset. They bring a vision, and that vision which they are bringing now is very different from the vision before. आज उनके अंदर एक ज़ील है करने की. तो कई बारी बात एजुकेशन की नहीं है, बात आपके विजन की भी है, आपकी ज़ील की भी है, एंड एट द राइट एज. आई हैव सीन शार्क टैंक के अंदर जो लोग जा रहे हैं, वो अपने बारे में बताते हैं. बिल्कुल. They are dropouts from colleges. They And are proudly proudly, मतलब ऐसा नहीं है कि and they are getting funding at such an extent क्योंकि उनका दिमाग विजन कोई कम तो नहीं कम है. नहीं. बिल्कुल बिल्कुल. और जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे लोग स्पोर्ट्स से ही आ रहे हो. वही वाली बात है, हमारे देश में कमी नहीं, हमारे देश में एक सिस्टम की कमी है. एंड आई थिंक वो लास्ट 10 ईयर से काफी सुधर भी गया है, सुधार भी आया है. और आई एम होपिंग कि जो हमारी अभी सरकार है वो बहुत वर्क कर रही है, एक्सटेंसिवली वर्क कर रही है एजुकेशन इंडस्ट्री में, कि हाउ टू मेक the school, the education system, a best education system in around the नहीं world. नहीं, improvement is round the corner, and I should say it is hand on hand with the बिल्कुल. parent, and the government is trying the best, and when it comes to you and your vision, बेस्ट टू बेस्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो. और आज की डेट में प्री स्कूल में एक बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है, मॉन्टेसरी, एंड वर्ड लाइक मॉन्टेसरी, रिजियो, एंड देन Waldorf. I would like that if you could put some light on it, ki what approach does your school take and why does it take that approach, because it's a mixture. Mixture. सब लोग अपनी अपनी चीज ला रहे हैं, कोई कहता है ये बेस्ट. Yes, there are 4-5 methods of teaching in early education. So, but as a brand, as a Shriram brand or a Central brand, we use all kind of methods. Is not so, you know, as a child, you need practical knowledge, you need social knowledge, you need
emotional knowledge, you need physical knowledge. So if we focus on one part, what about others? Body तो सिर्फ if I train my head only, how will I train my hands? We have to move, you know. Very good, very nicely said. We Very, have very good. our coordination, body coordination with hands and legs and head, it's simultaneously. अगर आज मैं सिर्फ बोलूं कि आप जिम जाओ, सिर्फ आप अपने बाइसेप्स या फिर उसको करो, व्हाट अबाउट अदर पार्ट्स? और लेग्स भी करनी है, लेग्स भी करनी पड़ेगी, वरना शोल्डर तो भी ये करना बहुत है। अलग हो जाएंगे, हाँ, बहुत अलग हो जाएंगे. बिल्कुल ठीक कह रहे So that is the blend of, you know, our brand is blend of every mythology, every pedagogy कि वो use होती है. And we don't follow any particular play method. We use playway method, we use experiential learning, we use Montessori. We have Montessori labs, we have science labs also, we have robotics labs, we have, you know, different dance studios also. So we focus on every method, we focus on every matlab, from A to Z, whatever you can think of, we inherit in our child. हैं। ए So टू जी आप सब कुछ यूज करते हैं। यू हैव, आई शुड से, इट्स अ प्लेटर, platter, है yes, ना? इट्स अ प्लेटर विद ईच एंड it's a एवरीथिंग। sizzler, it's a सिजलर है sizzler वो, और of everything. of Yeah. everything. So dependingly how it has to be increased and more has to be inculcated, you adapt that method and go for it. Yeah, you know, there you have seen that there are a lot of play houses have come up. Kids in it, they have done a very good job. So everyone can't go there, obviously, and it has a ticket size of, I don't know what is the amount, but we try to make that thing in our schools so that people, any child will get, you know, come to our school and get the exposure of that, so that when, you know, All under one roof. one roof. आज मतलब we I feel very proud when any parent comes to us, not obviously not to me, but to the principals or to the promoters or to the branch promoters. They say, यार, you know, when I went to railway station or to airport, my child said कि this is a boarding pass or this is a train. So that is the moment which I think कि यार You मुझे live कुछ by it and you love by it, you know. yeah. So You love that कि मैंने अपने स्कूल में वो exposure right on good time दिया। टाइम दिया, दैट इज द काइंड ऑफ एक्सपोजर वी नीड. और वो सिर्फ एक मेथड से नहीं आएगा, वो ब्लेंड ऑफ मेथड से आएगा. तो वो दैट इज द विजन वी हैव इन आवर श्रीराम schools. And you know, frankly speaking, that is the vision which we have, you know, in our principals, in our promoters. And I am sure that everyone has met our principals, many parents, you also have met नहीं personally. नहीं, I So really appreciate the entire team and the integrity, the, I should say, the family of Shri Ram Group, and it's a beautiful blend. You know, everyone is working very hard. और adding cherry to the cake is like you have not stopped only with these good brands. There is one more good brand. What I know is like Lensation Photography, right? Before we come down to the end of the podcast, you know, that is also a USP of the same brand. it is a USP of a same brand, as in, you know, I in the starting I said, my vision is to roam around the child centric things only. Correct. So obviously, lensation photography, it's a very vast word. Photography means all kind of photography, but my vision is to focus into, you know, babies thing only, like अच्छा, making albums of स्मॉल, the अच्छा, सब preschool. बच्चे, छोटे So बच्चों का we सारा। have a, you know, exclusive rights from for Prudence, for overall Delhi NCR, Shriram schools, GD Goenka, Bachman, to make, you know, to make the portfolio of the kids. Very And nice. you know, obviously, as a business mind, we thought to, you know, make a part of a school that anyone enrolls will should get a album. Because आज की डेट में डिजिटल इतना हो गया कि डिजिटल जब किसी से फोटोज मांग लो ना, पीछे भागना पड़ता है फोटोज के. सर फोटोज दे दो, फोटोज दे दो. अब एक आज मतलब when I got married, you know, I got the album. I said, यार क्यों कितने पैसे ले रहे हैं सही एल्बम के, वो बात। डिजिटल है ना. वो मेरे 3 फोन चेंज हो चुके हैं, वो फोटोज पता नहीं कहाँ हैं, बट आज भी मैं उस एल्बम को खोल के देखता हूँ. The you तो आई, यू नो, get back रिमाइंड to the memories. मेमोरीज. तो Yes, वही yes. मेमोरीज मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ पेरेंट्स के माइंड में, बच्चे के माइंड में. बिकॉज 2 years का बच्चा जब उसको व्हेन ही टर्न्स टू बी 12 years or 13 14 years, ही विल नॉट रिमेम्बर कि मैंने प्री स्कूल में क्या किया था, मैं कैसा दिखता था, मैंने क्या क्या किया. सही बात है। और वो अगर पीडीएफ कहीं आगे पीछे होगी तो गया, सब खत्म। खत्म हो जाएगा. और सर डिजिटल मतलब कंप्यूटर कुछ कभी कुछ आ गया, कभी कोई कोई वायरस भी हो चीज हो, सकता है। वायरस हो, तो बहुत सारी चीजें. दैट इज द प्रोसेस, दैट इज द थॉट प्रोसेस विच आई हैव. आई एम नॉट सेइंग कि इट इज द राइट प्रोसेस, एंड बट everyone is loving it, our parents are loving it, they, you know, encourage us कि यार चलो आपने
I know people think that it's a kind of a business tactic. Yes, it is a business tactic, but inheriting to our child, नो इट इज एडिंग वैल्यू टू इट value. डिपेंडिंगली हाउ यू टेक इट. Yes. मतलब आप प्रोवाइड कर सकते हो, आप बता सकते हो. आप बच्चा अगर 1% 1 out of 10 और आई शुड से 1 out of 7 8 10 5 इज नॉट विशिंग, तो ठीक है भाई, आपकी मर्जी, आप हमारे से दूसरे फॉर्म में ले लो. बट यू वुड लव टू प्रमोट इट बिकॉज यू नो टुडे और टुमारो इट हैज सम वैल्यू. Value. Yes. आज भी हम क्यों घर में अपनी पुरानी फोटो खोल के देखते हैं, चाहे वो अपनी शादी की हो, मॉम डैड की हो, बिल्कुल. तो उनकी भी वही चीज जो आज उस एल्बम में है वही दिखती है. बिल्कुल. मैं ये नहीं कह रहा बाकी चीजें खराब है, क्योंकि यू नो आई शुड पीपल मस्ट बी थिंकिंग नहीं नहीं, आई क्लाउड के ऊपर और उसके ऊपर तो जितनी सब मर्जी आप बिल्कुल. कवरेज ले लो, बट टाइम नहीं मिलता. जो एक चीज सामने आ जाती है वो दिखती है. सो बिल्कुल. मीन्स नॉट एडिंग ओनली टू योर वैल्यू, आई शुड से इट एड्स वैल्यू Value. डिपेंडिंगली हाउ डू यू टेक इट. So that is, it's not a very big venture, but it's a supporting kind of a venture to वेरी our गुड, दैट्स अ preschools. गुड वर्ड. To our preschools, it's not like that we want to earn a lot of revenue from that venture. Our main focus is education only. It's just that you said that supporting the factors of a preschool, because every preschool need a photographer, करेक्ट to करेक्ट click करेक्ट. on और the नहीं, event. दीज थिंग्स आर इन ऑल्सो, In, क्योंकि जब वो अपनी चीज को पूरा करता है, एनी गुड क्लिक शॉट टेकन एनी अ टाइम, Yeah. जब आपने चीजें करी हुई और लास्ट में उसको एक एल्बम दो जिसमें उसको खुद को नहीं पता होता वो कैसा लग रहा था, दिख रहा था, बिल्कुल. और कब हंसते हुए रोते हुए उसकी फोटो आ गई, कुड बी अ मेमोरी टू अ पेरेंट. True, true. तो इसका मतलब मैंने प्री स्कूल टाइम तो मिस कर दिया, बट लेंसेशन फोटोग्राफी आई कैन कम ओवर. Anytime, sir, anytime. है ना? You don't have to come. We have to come. नहीं नहीं नहीं, मतलब वो पोर्टफोलियो तो मैं बना सकता हूँ, 100%. मतलब एक एल्बम मेरी तैयार हो जाएगी. बिल्कुल सर. मतलब I would love to get myself photographed with such a beautiful lens session photography. 100% sir. तो We are ए, ready. ए, We are एक ready. एक ये बात पक्की हो गई हमारी, 100%. क्योंकि मैं कहूंगा मैं प्रे स्कूल आ रहा हूँ तो वो तो मेमोरी में चला गया, वो तो छोड़ दी. Whenever you want. वो तब मेरे आगे बच्चों के बच्चे जाएंगे तो इट्स गोइंग टू हैपन लाइक Yes, दिस. yes, yes. चलो. Whenever. It's obviously it's open, and for you, we don't have any problem, sir. जब आप बोलोगे तब आपके लिए हाजिर हो जाएंगे. नहीं नहीं, that's really so sweet of you, and I think now after this beautiful podcast, all people, those who are watching you, are going to come down to you whenever they need any kind of a good support to be a part of this entire big group, I should say, SR Educare and the Shriram family. They are people, those who are looking forward to take over Shriram Wonder Years, Centennial, Wonderland. They are free to approach you, and I think with such a beautiful, humble nature of yours and all your directors and the team, मतलब दे आर ओपनली वेलकम. और अभी तो आपका मैं मोबाइल नंबर भी फ्लैश कर दूंगा उसके अंदर. ऑल डीएम्स आर वेलकम. आई थिंक यू विल हैंडल देम वेरी नाइसली. 100% welcome. I'll tell you one thing, that on the website of our company or school, I have wrote down my number only. ओह, I haven't given any team number because I want to know the proper feedback of the parent. I'm not saying कि मुझे call आती है सिर्फ appraisal की. Yeah, there are a lot of calls कि इस school में ये problem हो गई, इस school में ये problem हो गई, so that I get to know the actual picture of the school. So I am very easily approachable. ऐसा नहीं कि इस podcast के बाद मैं हो जाऊंगा, but yes, I'll be a famous person now because of अरे you now. नहीं नहीं सर. And but yes, anyone wants to meet, anyone wants to DM me, but they are very feel free to reach me out. But before that, if you want to talk to our principals, they are much educated, much mature person who नहीं, they are very humble also yeah, to listen to they it, and can they will guide you. improve because Yeah, they are there for the same same part. part. Yeah. हाँ, and yes, it's a beautiful say by Mr. Anshul that your first approach to the principals and to each and everyone, whichever branch you are, is would be properly heard. And post that also, you still feel that you need the directors say, go, or ear to get down to speak to them. I think Mr. Anshul Bansal is very easy to catch up, very humble to speak. And yes, with this podcast, we wish the entire SR Educare and the Shriram Wonder Year family to grow wings pan India. And very soon in the next podcast, we would be very happy to know that apart from being pan India, soon they might travel to international standards also. So wish you all Thank the you very so much. best Thank you so and much. all the best. And that was really a beautiful podcast, knowing the insights of the director and the vision ahead. Thank you so much. And once again, I thank you a lot to inviting me here. And I hope that whatever way I have in my mind and what was my vision and what is my vision, I can easily try, pass on to you guys and to all the parents and educators. So, rightly said, uh, you know, please feel free to reach me out if anyone has any kind of problem.
but if not solved by the particular branch or Very school. true. So yeah, thank you so much once again. Wish you And great luck. thank All you the so much. best. Thank you.